السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ اور میں ہوں نادیہ نقی. آج دوپہر سے ہی اس سانحے کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن ابھی تک انفولڈ ہو رہی ہے. کراچی طیارہ حادثہ جو کہ ایئرپورٹ سے 4 کلومیٹر دوری پر لاہور سے یہ آ رہا تھا، مسافر طیارہ PIA کا، جو کہ گر کر تباہ ہوا. بتایا گیا ہے کہ 91 پیسنجرز انکلوڈنگ 7 کرو ممبرز اس میں سوار تھے، اور جس طرح سے یہ طیارہ گرا ہے آبادی پر گرا، جس کی وجہ سے اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 8 سے 10 گھر جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آئے ہیں. لیکن کیونکہ ابھی ریسکیو آپریشن جاری ہیں، لہٰذا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کتنے مکانوں کو نقصانات پہنچے ہیں. انیشلی ہم نے دیکھا کہ لوگ بھی ظاہر ہے بہت سارے جمع ہو گئے، امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ بھی آئی، لیکن پھر اس کے بعد اس پورے ایریا کو کارڈن آف کیا گیا. فوج کے دستے، رینجرز کے دستے وہاں پر موجود تھے. پوری کراچی کی انتظامیہ، اپوزیشن کے تمام لیڈران سب کے سب وہاں پر گئے، اسپتالوں تک پہنچے. انیشلی ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جاں بر نہیں ہو سکے، لیکن 2 سروائیورز کی اطلاعات ضرور ہیں کہ 2 لوگ جو ہیں وہ اس حادثے میں سروائیو کیے گئے ہیں. ابھی انیشل جو ابتدائی رپورٹس ہیں اس حوالے سے، اس ایکسیڈنٹ کے حوالے سے، وہ بھی ایک طرح سے کمپوز کر لی گئی ہے. کچھ ہی دیر میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ PIA کے چیئرمین جو ہیں یا CEO جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے اور تمام تر معلومات جو اب تک اکٹھی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بتائیں گے. جب یہ طیارہ حادثہ ہوا تو اس وقت ایئر ٹریفک کنٹرول سے بتایا جاتا ہے کہ پائلٹ کا رابطہ 1 منٹ پہلے ہی منقطع ہو گیا تھا اس حادثے سے پہلے، لیکن جو آخری بات تھی اس میں انہوں نے مے ڈے کی کال دی تھی، وچ مینس کہ آئی تھنک ایوری تھنگ از آؤٹ آف ہز کنٹرول. آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ظاہر ہے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کہ کیا ہوا اس طیارے کے ساتھ. انجن میں آگ لگی، یعنی شاہدین کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھی بھی، اور پھر اچانک سے طیارے کو گرتا ہوا دیکھا گیا. پھر جو ابتدائی رپورٹ ابھی جو تشکیل کی گئی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لینڈنگ گیئر خراب تھے، اور اس وقت جو ہے ایک پرندہ جو ہے وہ بھی شاید ٹکرایا ہے. لیکن ظاہر ہے حتمی رپورٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہی سمجھ میں آتی ہے جب ساری چیزیں انفولڈ ہو جاتی ہیں. آج اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. میرے محترم مہمان جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں MNA ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے، آفتاب صدیقی صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. نذیر لغاری صاحب ہمارے سینئر تجزیہ نگار، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایئر کوموڈور ریٹائرڈ جمال حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ، ظاہر ہے عید منانے کے لیے لوگوں نے اس لاک ڈاؤن کے بعد جب یہ ڈومیسٹک پروازوں کا سلسلہ شروع ہوا، کیا ہی پتہ تھا کہ وہ لقمہ اجل بن جائیں گے، اور ساتھ میں اپنی لپیٹ میں وہ آبادی کے لوگ، کیونکہ ان کے گھر بھی تباہ ہوئے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت وزیر اعظم نے، چیف آف آرمی اسٹاف نے، گورنر سندھ نے، پاکستان سندھ کی جو حکومت ہے وہ بہت کچھ کر رہے ہیں تاکہ حتی الامکان متاثرین کی مدد کی جا سکے. بظاہر کوموڈور صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایز آئی سیڈ کہ اٹس ٹو ارلی ٹو ایکچولی سے کہ دس واز دا ریزن بیہائنڈ دس ایکسیڈنٹ. ایکسیڈنٹ مینز ایکسیڈنٹ. لیکن کیا ہم یہ کہیں کہ کیونکہ 2 اس ایئر بس 320 ہے، 2 انجنز دونوں ہی لاک ہو چکے ہوں، یعنی دونوں ہی اس وقت میل فنکشن پہ ہوں، کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ آپ اسے بچا سکیں آبادی سے اور جلد سے جلد کریش لینڈ کر سکیں؟ پہلی بات میرے خیال سے میں تھوڑی سی A320 کی تاریخ بتا دوں. یہ 1970s 80s میں یہ زیادہ آیا تھا، اور اس کے اب تک 12 کریشز ہو چکے ہیں 12 ٹوٹل. ہل لاسز ویسے تو 36 ہیں ٹوٹل وغیرہ وغیرہ کے، لیکن یہ ایئر لائن میں یہ ون آف دی موسٹ سیف ایئر کرافٹ مانا جاتا ہے. اچھا. اس کی ریکارڈ یہ ہے کہ اس کی ایکسیڈنٹ ہل لاسز جو ہے 0.1 پر 1 ملین ٹیک آفس. دیٹ مینس 10 ملین ٹیک آف ہوگا تو ایک ہل لاس ہوگا، وچ از کنسیڈرڈ ویری گڈ ان ایئر لائن انڈسٹری. جو میں نے تھوڑا سا تجزیہ کیا تھا، اس کی میکسیمم ایئر کرافٹ جو ایکسیڈنٹ ہوئے تھے، کچھ تو ہوا میں مسئلہ ہو گیا تھا، کچھ پائلٹ ایرر تھے. جو پہلا ایئر کرافٹ کریش ہوا تھا 1980s میں، ٹیسٹ پائلٹ گڑبڑ کر کریش کر گیا. 1990 میں انڈین ایئر لائن کا کریش تھا. وہ لینڈنگ کے وقت کوریا جہاز پہلی دفعہ اس میں آٹومیشن بہت سی آئی تھی. اس سے پہلے ہم پائلٹ جو تھے وہ ساری چیزیں مینول کرتے تھے، تو اس میں اتنی آٹومیشن آئی، اور اس میں لینڈنگ کے بعد کچھ گڑبڑ ہو گئی، وہ شارٹ آف لینڈنگ کریش کر گیا. وہ اس کی انکوائری میں انہوں نے پائلٹ کو بلیم کیا تھا کہ ہی ڈڈ ناٹ ڈو ایوری تھنگ وچ اکارڈنگ ٹو دی مینول. لیکن پھر لوگوں نے بڑا شور مچایا، رائٹلی سو، اینڈ دین دے میڈ اے لاٹ آف امینڈمنٹس. تو ابھی یہ پائلٹ بہت سیف ہے. اب آ جاتے ہیں جو آپ کا سوال ہے. پہلی بات ہے کہ اب میرے خیال سے یہ کہنا کہ دونوں انجن فیل ہو گئے، آئی ڈونٹ نو. But this I can confirm there was a power loss.
there was a power पावर loss. लॉस, Okay. दोनों में फ़र्क है थोड़ा ना. अच्छा. इंजन फेल तो इंजन दोनों चले गए. सही. एक ही केस मुझे याद है 2 इंजन फेलियर का, वो हुआ था 2013-14 में, वो फेमस हडसन रिवर में जो क्रैश किया था. अच्छा. ओके. और दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ बर्ड हेड. तो बाकी 2 इंजन अभी तक तो मैंने नहीं सुना कि इकट्ठे फेल हुए. अगर एक इंजन फेल होता है इन जहाज़ों में, दे आर सो सेफ. जो मैं अपने वन ऑफ माई मेरे दोस्त का बेटा हूँ PIA पायलट, तो मुझे कहता है कि अंकल जब एक इंजन फेल हुआ तो हम तो चाय पीते हुए इसको कर लेते. दैट मीन्स इट्स नॉट ए वेरी सीरियस इमरजेंसी. इसकी 2 चीज़ें. तो जो पहले जब आया था, मैंने ये भी पता है कि PIA पायलट जब कराची में आते हैं तो नॉर्मली वो लाइन अप करते हैं लैंडिंग के लिए, अबाउट 9-10 माइल्स आ जाते हैं, नए लेवल आ रहे बिल्कुल सही. हैं. और बिफोर दे हिट द ग्लाइड स्लोप जहाँ से उन्होंने डिसेंड करना होता है, उन्होंने गियर फ्लैप सारे अपने सेटअप कर दिए. बिल्कुल सही. तो यहाँ पे अपेरेंटली जब उसने गियर डाउन किया है तो गियर नीचे नहीं आया, इंडिकेशन नहीं आई ना, तो ये गिवन ए कॉल टू डिसकंटिन्यू, जिसे गो राउंड भी हम कहते हैं, अच्छा. टर्न अराउंड भी कहते हैं. डिसकंटिन्यू ऑल ही हैज टू डू कि डिसेंट रोक ले, एंड देन प्रोसीजर ये होता है कि रनवे कम अप टू द रनवे 2000 फीट, एंड देन इंस्ट्रक्शंस अपने गियर्स को जो भी करना है कर ले. ओके. अच्छा. सो अपेरेंटली यहाँ उसने गियर्स की कॉल दी है, एंड देन ही हैज ओपन पावर, बिकॉज जब आपने गो राउंड करना होता है 2-3 चीज़ें करनी होती है. आजकल ये जो मॉडर्न जहाज़ है 777, उसमें तो आप एक ने बटन दबाना होता है और कंप्यूटर सारा कुछ करता है, यू जस्ट मॉनिटर वगैरह वगैरह. लेकिन इन जहाज़ों में आपने खुद करना होता है. देयर 3-4 वाइटल स्टेप्स. द फर्स्ट थिंग इज़ पार ऊपर जाएगा, फिर गियर फ्लैप डे और टाइम नोज को थोड़ा सा करना है, स्पीड बनानी है. अपेरेंटली यहाँ पे ही हैज़ लॉस्ट पावर, आइदर इन वन इंजन और बोथ इंजन. फिर इसकी जो मेडे कॉल आई है, नॉर्मली PIA पायलट ये भी बताते हैं कि अगर सिर्फ एक इंजन होता है तो 2 कॉल्स होती है. एक पैन का मतलब कि आई हैव ए प्रॉब्लम, नॉट ए ग्रेव प्रॉब्लम बट ए सीरियस प्रॉब्लम. Mayday is a very serious problem. Which means it's all out of my control now. It is not out of control, it's very dangerous. Very dangerous. Distress cause. है ना. तो यहाँ पे apparently he has lost power, and the fact that if मैंने एक अभी वीडियो भी देखी, somebody has seen it crashing, it has crashed in a controlled manner. इस वजह से कुछ लोग की जानें बच गई है. So बाकी जो आपने देखा था, यानी इससे ज्यादा तबाही हो सकती थी, लेकिन काफी हद तक इसको भी बचाया गया है, आबादी को भी. I won't say that everybody didn't die. Okay. But out of 99 or so, अगर 95 मिल गए, that's pretty bad. अभी भी खैर हमारी दुआ है कि जो, क्योंकि ज़ाहिर है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अल्लाह करे कि जिस तरह से 2 लोगों का मौजज़ा अल्लाह ताला ने दिखाया, और वो जो मौजज़ा आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो सर्वाइव किए, उनको देख कर एक के तो है 20% जो है वो बर्न इंजरीज़ हैं. ज़ुबैर उनका नाम बताया, नौजवान लड़का है, एक बैंक ऑफ पंजाब के हैं जिनको कुछ इंजरीज़ आई हैं, लेकिन ऑन द होल अगर आप उन्हें देखें तो ऐसा नहीं लगता कि एक तैयारा जिसमें बहुत ज़्यादा आग लग रही हो, तो यही अखज़ करता इंसान के बहुत ही ज़्यादा जल गए होंगे. लेकिन कंट्रोल क्या क्रैश है, आप ये समझते हैं. आफ्ताब सिद्दीकी साहब, जिस वक्त ये वाक़या हुआ आपने आना था, ज़ाहिर है आप फ़ौरन वहाँ चले गए. जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं, और हमारे यहाँ ये शिकायत रहती हैं कि हम रेस्क्यू नहीं कर पाते, हम सिर्फ लाशें ही उठाने के लिए हैं, उसकी मेन वजह क्या, जिस तरह से लोगों का जमघटा, हमारे पास वो SOPs का ना होना, वो सिस्टम्स का ना होना, आपको लगता है? पहले तो ये कि जो हम कोरोना के क्राइसिस से गुजर रहे थे, कौम उसमें ही बड़ी परेशान थी, और आज ये अलमनाक वाक़या हो गया. इसके ऊपर हम सब अफसोस का इज़हार भी करते हैं. और जो आपका सवाल है, जब मैं फ़ौरन ही मेरी और काफ़ी MNAs और हमारे शुक्र शेज़वान साहब वहाँ पे पहुँच गए थे. रेस्क्यू शुरू हो गया था. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ पे कंजेशन थी. वो बहुत तंग गलियाँ थी, और तंग गलियों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का जाना, एम्बुलेंस तो चली गई थी, और उसके अलावा वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हुई थी लोगों की, मोहल्ले वालों की. वो एक इशू था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस, सारे रज़ाकार, तमाम पार्टीज़ के लोग वहाँ पहुँच गए थे. ये बड़ा अच्छा साइन है हमारी मुल्क में, हमारी कौम का, कि जब भी कोई आफत आती है तो हम सब खड़े होते हैं और उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एक सवाल जो उठता है ये कि ये एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द इतनी क्लोज एरियाज़ में कंजेशन और आबाद कॉलोनियों का बनना, जिस वक्त ये एयरपोर्ट बना था उस वक्त इतना नहीं था. बिल्कुल और सही. अब ये मॉडल कॉलोनी पूरी बन गई, उसके साथ मलिर कैंट भी है, तो वो एक बड़ा रिस्की आइंदा के लिए भी होगा. और फिर यहाँ पे जो मुस्तकिल वाक़यात हो रहे हैं, मैंने खुद एयर मार्शल अरशद मलिक साहब के काफ़ी स्टेटमेंट सुने और देखे हैं. मुझसे खुद भी बात हुई है कि यहाँ पे जो परिंदे हैं उसको कंट्रोल करने वाला
کوئی نہیں ہے. اور اکثر آپ اخبارات میں اور نیوز میں دیکھتے ہیں کہ انجن میں اولا چلا گیا, انجن خراب ہو گیا. تو یہ شکایات تو ہر ایئرپورٹس کی پاکستان بھر میں آ رہی ہیں. یہ میونسپیلٹیز کو جو ہے نا یہ کنٹرول کرنا چاہیے. اس کی وجہ جو ہے جو ہمارے یہاں گاربیج جو جگہ جگہ گاربیج پڑا ہوا پورا شہر کے گاربیج ہوا. اس سے پہلے کہ میں نذیر لغاری صاحب کی طرف جاؤں, میں یہ جاننا چاہوں گی آفتاب صاحب, یہ بتا سکتے ہیں آپ کتنے گھر ہیں جن کو نقصان پہنچا ہے کمپلیٹلی؟ یہ کوئی 8 سے 10 گھر ہے, 8 سے 10 اور جس میں 4 سے 5 گھر تو بہت ڈیمیج تھے. اور آج گورنر صاحب نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ان لوگوں کو ہم ایئرپورٹ ہوٹل میں شفٹ کر رہے ہیں, اور اگر مزید جگہ کم پڑی تو قصر ناز میں. کل سے ہماری اپنی ٹیمیں بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کی اور گورنر صاحب کی موبلائز کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں. اور ریسکیو تو ہو رہا ہے الحمدللہ, اس میں کوئی کیا گھروں کے ملبے تلے بھی لوگوں کے دبنے کی اطلاعات ہیں؟ بالکل ہے وہ, مگر جیسے جیسے یہ ملبہ ہٹے گا تو اس میں سے وہ کلیئرنس ہوگی الحمدللہ. مجھے امید ہے کہ 2 لوگوں کے سروائیول کا تو پتہ چل گیا ہے. ایک تو ابو ظفر مسعود صاحب جو سی او ہے بینک آف پنجاب کے, اور دوسرا ایک زبیر ہیں جو جنہ ہاسپٹل میں ہے. ابھی اس پروگرام کے بعد ہم نے گورنر صاحب نے وہیں پہ جانا بھی ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید لوگوں کے لیے آسانی کرے, اور اس رمضان میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر رہے ہیں, اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. بالکل آمین, کیونکہ بہت بہت مشکل وقت ہے یہ, بہت المیہ ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو, بالکل, اور یہ بڑی ناگہانی ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا, یہ ایکسیڈنٹ کا ہو جانا ہے. اور پھر سب سے بڑی ناگہانی ہے کہ جو لوگ گھروں میں تھے ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا, ان کو نہیں پتا تھا. یہ بات پھر ایک خدشہ تھا, پھر ایک خدشہ ہوتا ہے, لیکن جو اس کی لپیٹ میں آ گئے, بس اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پر اور ہمارے حالات پر. نذیر لغاری صاحب, کمیٹیز بھی تشکیل ہوں گی, انکوائری بھی سیٹ اپ ہوگی, ایکسیڈنٹس پہلے بھی ہوئے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہی مطلب کیونکہ اس کا زمرہ ہی ایکسیڈنٹ ہے, there is not much one can do, but there are a lot of other things جس کے بارے میں ابھی آپ نے دیکھا کہ پیلپا سے بھی جو ترجمان تھے وہ بھی شکایات کر رہے تھے کہ پائلٹس کئی عرصے سے اس حوالے سے بات کر رہے تھے. ایک تو ایئر بس کے حوالے سے, A320 کے حوالے سے, ہماری سیفٹی جو کمپرومائز کی جاتی ہے, ایویشن سیفٹی میجرز جو ہیں جس میں یہ پرندوں کا ہے, قریب ارد گرد کی ساری جو آبادیاں بن جاتی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا اب بھی ہم ان چیزوں کے اوپر کوئی توجہ دینا پسند کریں گے؟ یہ جو انکوائریاں ہوں گی اس کے بعد کوئی ڈراسٹک میجرز آپ دیکھیں گے ہوتا ہوا؟ ایک تو یہ کہ چونکہ آبادی ہو چکی ہے اور ریگولائزڈ آبادی ہے, یہ نہیں ہے کہ کچی آبادی ہے, باقاعدہ ایک ریگولائزڈ آبادی کے طور پر ہی آباد کیا گیا, باقاعدہ نقشہ بنا, باقاعدہ جو بھی اس وقت کی حکومت ہوگی جس نے اس کی منظوری دی ہوگی, جس نے یہ پورے کی پوری آبادی کا منصوبہ بنایا ہوگا, اس کے پیش نظر یہ ضرور ہونا چاہیے تھا کہ جی یہاں پر اگر ایئرپورٹ کے قریب بن رہا ہے تو یہ آبادی کہیں سطح ایئر ٹریفک کو پریشان کرے, یا ایئر ٹریفک میں اس طرح کا کوئی گڑبڑ پیدا ہو یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پرندے بھی ہیں, میں خود اس علاقے میں رہتا ہوں, قریبی ہوں, میں ملیر کینٹ میں ہوں, تو یہاں پر پرندوں کو ہمارے پاس انتظام نہیں ہے. جس طرح سے یہ کہا جا رہا تھا, یا کمرور صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بلدیاتی ادارے یہ کام کرتے ہیں اور انہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ایئرپورٹ کے ارد گرد کے علاقوں کے اندر پرندوں کا, مکھیوں کی بھی وہاں پر گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایک مکھی بھی وہاں پر پائیں, اور ایک مکھی کے ٹکرانے سے بھی جہاز کا پرابلم ہو سکتا ہے کہ جائے کہ کوئی پرندہ جہاز سے ٹکرائے تو وہ تو ویسے ہی اس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ مسئلہ ہم ابھی نہیں کہہ سکتے ہیں, ہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پرندے کی وجہ سے ہوا یا کوئی اور وجہ سے, کیونکہ ایک انیشل بات وہی ہو رہی ہے جو کہہ رہے تھے ایئر کمرور صاحب کہ جی اصل ایشو یہ ہوا ہے کہ جو لینڈنگ گیئرز تھے, ہم نے یہ سنا ہے, جو ہمارے ذرائع ہیں جو بہت کلوز جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں اور جن سے روابط ہوئے, تو انہوں نے کہا ہے کہ لینڈنگ گیئرز جو ہیں ان کا فیلور تھا, اور وہ لینڈنگ گیئرز کی وجہ سے جو ہے ان کو وہ لینڈنگ نہیں کر پا رہے تھے. تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ایک ٹرن اباؤٹ کر کے ایک چکر لگا کر واپس آئیں گے تو تب تک اس دوران میں آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے اور وہ مینولی ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن جب یہ بات ہوئی, اس بات کے فوراً بعد یہ کہا جاتا ہے کہ کلیپس ہوا, اور یہ جو ہے اچانک جہاز میں سپارکنگ ہوئی اور جہاز جو ہے وہ فیل ڈاؤن ہوا اور گر گیا جہاز, اور آبادی کے اوپر گرا ہے. اور آبادی ظاہر ہے یہ 8-10 مکانات بتائے جا رہے ہیں, اور ظاہر غیر آباد علاقہ نہیں ہے, یہ گنجان آباد علاقہ ہے, یہاں لوگ رہتے ہیں, ان 8-10 گھروں میں بھی لوگ ہی رہتے ہوں گے. بالکل صحیح بات ہے. دعا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ صحیح سلامت ہوں, اللہ کرے کہ ان میں سے
लोगों की जानें न गई हूँ। वैसे तो सारे का सारा हादसा ही इंतहाई तकलीफ दे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लखारी साहब, ये जो बात आपने कही और जो कॉमोडोर साहब कह रहे हैं कि कंट्रोल्ड क्रैश है ये, ही इज टर्मिंग इट एज अ कंट्रोल्ड क्रैश। आपकी जो खबर है वो भी बिल्कुल सही है। इनिशियली ये बातें भी आ रही थी कि पायलट से ये कहा गया कि गो अराउंड, और ऐसे में एक लो ऑल्टीट्यूड पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के सामने से आप गुजरते हैं ताकि मीनवाइल जो कुछ भी आपको इसमें लैंडिंग गेट्स के हवाले से जो मैन्युअली सही किया जा सकता है, जैसे आपने भी बताया, वो नहीं हो सका और यकदम जो है ये जहाज़ गिरकर तबाह हुआ। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इतना बड़ा लॉकडाउन था, जाहिर है परवाजें नहीं चल रही थी, हमारे यहाँ ये शिकायत मेंटेनेंस के हवाले से रही हैं, क्या इस पूरे असना में ये मेंटेनेंस हो रही थी, नहीं हो रही थी? एक आम शख्स ये सवाल कर रहा है कि अभी उड़े हुए इस जहाज़ को 1 घंटा से थोड़ा सा ही ज़्यादा वक्त गुजरा है, इसकी पूरी ज़ाहिर है लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर इंस्पेक्शन की गई होगी, सारी रिक्वायर्ड टीम्स ने, हर डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस दी होगी, फिर इतना बड़ा ये मैल फंक्शन क्या मुमकिन है, हो जाता है, या वहां पर हमने कोई चेकिंग में कॉम्प्रोमाइज हुआ है? वी टेक अ ब्रेक, व्हेन वी कम बैक वी डिस्कस दिस। कराची तैयारा हादसा के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के मेंबर आफ्ताब सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, एयर कॉमोडोर रिटायर्ड जमाल हुसैन साहब हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार नज़ीर लखारी साहब हैं। जाहिर है कि इस हादसे के हवाले से बहुत सारे जहनों में बड़े सवाल उठते हैं जब कभी भी एक्सीडेंट होता है कि क्या हुआ, क्या इसे रोका जा सकता था, किस हद तक इस तबाही से बचा जा सकता था। लेकिन अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी। अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि कराची में ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, अभी हतमी हम कैजुअल्टीज़ के हवाले से भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल मुतासरीन के हवाले से जिनके घर पर ये तैयारा टकराया और काफ़ी घर जो हैं वो इससे नुकसान हुआ है, 8 से 10 घर बताए जा रहे हैं, उन सब लोगों को अब एयरपोर्ट होटल और जो करीब के जो स्टेट के मेरे ख्याल से गेस्ट हाउसेज हैं कसरे नास के अंदर, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाएगा। और बाकी जो अभी रेस्क्यू सर्विसेज हैं वो जारी हैं। गुंजान आबाद इलाका जहाँ पर ये तैयारा गिर कर तबाह हुआ, जो मैं बात कर रही थी ब्रेक से पहले जमाल साहब, उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लाहौर से अभी उड़े हुए 1 घंटा एंड सम मिनट्स हुए और उसके बाद सडनली वी फाइंड आउट दैट लैंडिंग गेयर्स काम नहीं कर रहे, इंजन्स जो हैं वो शायद काम नहीं कर रहे, आपने कहा पावर लॉस हो सकता है। तो ये सब पूछते हैं कि क्या सेफ्टी मेजर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, क्या वो प्रॉपर चेकअप्स नहीं हो रहे, क्या नहीं हुए थे लाहौर में, एकदम से इतना बड़ा मैल फंक्शंस कैसे हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि मैकेनिकल माल फंक्शन वो किसी वक्त भी हो सकता है। बिल्कुल नए जहाज़, आपने ब्रांड न्यू जहाज़ निकला है, टेक ऑफ किया, इट कैन हैव अ मैकेनिकल माल फंक्शन। ओके, चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये कहना कि चूंकि जहाज़ उड़ा था घंटे में हो गया, हाउ इज़ इट पॉसिबल, देयर मस्ट बी ए सीरियस लैप्स, दिस ये मुबालगा है थोड़ा सा, वी डोंट नो येट। But do you think this has to be like also focused कि कहीं कोई ये फोकस तो ज़रूर कोई होगा, लैप्स तो नहीं था? फोकस तो ज़रूर होगा। हमें 2 चीज़ें बताई जाती थी, बिकॉज व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें 2 चीज़ें हमें बताया जाता था। पहले के जैसे मैं कह रहा था कि आई विटनेसेस अगर 10 हों तो 10 के शायद डिफरेंट टोटली ऑपोजिट भी आ सकते हैं। ओके, सो यू डोंट टेक देम एज ऑन द फेस वैल्यू, आप उसको और इन्वेस्टिगेट करते हैं। सेकेंड, यू डू नॉट अस्यूम एनीथिंग अंटिल यू फाइंड द एक्सीडेंट कॉज। तो ये कहना जैसे कोई कह रहे हैं कि somebody said ये हो गया वो हो गया, आई थिंक they are not We have to wait for the black box also. वी कैन से कि ये पॉसिबिलिटीज़ है। अब देखिए, पहले भी जो क्रैश हुआ था ATR का, उस पर मैंने सुना है कि अभी तक रिपोर्ट शायद पब्लिश नहीं हुई है। अब मुझे उम्मीद है अगर चीनी आटा की रिपोर्ट आ गई है तो इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। आई प्रिटी होपफुल। और चूँकि ब्लैक बॉक्स मिल गया, इसमें तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा। एंड मेरा अपने तजुर्बे में कह रहा हूँ 80% दैट देयर हैज़ बीन अ पावर लॉस। ओके, उसकी वजह इंजन फेलियर, बोथ इंजन फेलियर, वन इंजन फेलियर, बर्ड हेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकती है। और अगर कोई लैप्सेस हुई हैं, ऐसे जहाज़ मैंने बताया, इट्स ए वेरी साउंड एयरक्राफ्ट, पॉसिबल मेंटेनेंस की लैप्सेस हुई होंगी। अगर मेंटेनेंस की लैप्सेस है वो पता चल जाएगा। सो आई थिंक ये कहना कि इसकी वजह से हुआ, दैट इज नॉट फेयर। ओके, बट एवरीथिंग हैज टू बी लुक्ड इन्वेस्टिगेटेड बिफोर आप उसके हतमी नतीजे पर पहुंचते हैं। आफ्ताब साहब, ये भी बड़ी, अभी कुछ देर पहले भी हमने देखा कि पालपा के जो तर्जुमान थे वो शिकायत कर रहे थे कि पायलट्स की तरफ से ये आवाज़ें कई बार उठाई गई इन जहाज़ों के हवाले से कि पुराने हैं, जबकि ये पर्टिकुलर जहाज़, इसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट अक्टूबर 2020 तक था, नवंबर में इसकी इंस्पेक्शन
इंस्पेक्शन भी की गई एंड ये भी बताया जा रहा है कि ये कोई बहुत ओल्ड नहीं था, लेकिन उमूमी तौर पर ये है कि PIA के पास जो जहाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। अब आप लोग की ज़ाहिर है एविएशन के हवाले से अरशद मलिक साहब को भी लाया गया, आप खुद भी एविएशन में पहले रह चुके हैं, बिफोर यू हैव शिफ्टेड योर पोर्टफोलियो, अभी आपका जो शिफ्ट हुआ है, क्या समझते हैं, क्या हमारे जहाज़ वाकई बहुत पुराने हैं, क्या उनकी इतनी देख रेख नहीं हो रही, इतनी मेंटेनेंस नहीं की जा रही? देखें, अभी जो आप बात कर रही थी 1 घंटे के बाद ये जहाज़ गिर गया, ये जहाज़ आ रहा था मस्कत से, मस्कत से लाहौर पहुंचा, लाहौर से यहाँ पहुंचा, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं फिटनेस सर्टिफिकेट तो इसे इशू हुआ था। बिल्कुल, चेकिंग तो हुई होगी। और जो एयरलाइन की सिविल एविएशन के अपने SOPs होते हैं, अब उन SOPs पे अगर कोई कंप्रोमाइज़ हुआ वो तो बड़ी ज़्यादती हुई है। वो इट्स टू अर्ली टू कमेंट्स के मतलब कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम इस वक्त तो तज्जिया कर सकते हैं और सिर्फ ये बता सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस तरह भी बात हुई कि बहुत जल्द इसका जो है ना इंक्वायरी कमीशन बैठ जाएगा और उसके रिजल्ट भी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही छोटे इलाके में ये गिरा है और मेरा ये ख्याल है ये फटा नहीं है, ये टूटा है जहाज लग के, उसके बाद फिर उसमें आग लगी है। अच्छा। तो और ब्लैक बॉक्स पहले ये टकराया है, टूटा है एंड देन आग लगी है। ब्लास्ट नहीं हुआ था, ब्लास्ट नहीं हुआ था, और ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है और इस दफ़ा इसकी रिपोर्ट ज़रूर आएगी। थैंक यू। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह शुगर की आई है या एनर्जी की आई है, इसी तरह इसकी भी आएगी और जो कल्प्रेट होंगे जिनसे ज़्यादती हुई या नेग्लिजेंस है वो आइडेंटिफाई होगा, उनको जो है ना उनको पैनलाइज करना चाहिए और हमें अपने तमाम इदारों को पॉलिटिसाइज होने से बचाना है। ये भी बड़ा इशू है कि हमारे सारे इदारे पॉलिटिसाइज हुए हुए थे, लोगों की परफॉर्मेंस भी जज करनी होगी। और मैं ये समझता हूँ जब से अरशद मलिक साहब आए हैं बहुत बेहतरी PIA में आई है। PIA बहुत बड़े लॉस में जा रहा था और इस वक्त जो है पिछले कोरोना से पहले ऑपरेशनल लॉस भी उनके ख़त्म हो गए थे, बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया था। मगर इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास जो जहाज़ हैं उनकी ओवरऑल मेंटेनेंस के कुछ इशू सुनने में आए हैं, जैसे पालपा ने भी कहा है, अगर ऐसा है तो उसको एड्रेस करना चाहिए। अच्छा, आपको कुछ करेज मिल रही है इससे नज़ीर लगारी साहब की इस मरतबा कम अज़ कम इस एक्सीडेंट की जो इंक्वायरी वो रिपोर्ट बनेगी वो सामने भी आएगी, मंजर आम पर भी आएगी और फिर सज़ाएं भी होंगी, और या जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की तरफ जो है हम अपना डायरेक्शन रखेंगे या फोकस रखेंगे? डज इट गिव यू करेज? असल बात ये है कि 2 चीज़ें जो एक आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने कहा ना कि इस कौम की एक खासियत है कि जब कोई क्राइसिस है, जब कोई मुश्किल है, जब कोई दुख की घड़ी है, जब कोई मसाइल सामने आए तो ये लोग जो हैं एक हो जाते हैं। अब आम हालात में कभी नहीं हो सकता था कि आफ्ताब सिद्दीकी साहब PTI के लीडर होकर और दूसरी तरफ हुक्मरान जमात जो सूबाई है उसके लोग एक दूसरे के साथ मिलें तो कोई बहुत खुशदिली से बहुत अच्छे तरीके से मिले। लेकिन ऐसे मौके पर जब क्राइसिस होता है वो एक साथ हो जाते हैं, एक साथ बाकायदा, बल्कि तमाम इदारे भी ऑन बोर्ड हो जाते हैं। 1000 शिकायतें होंगी एक इदारे को दूसरे के साथ, 1000 शिकायतें होंगी एक जमात को दूसरी जमात के साथ, 1000 शिकायतें होंगी एक शख्स को दूसरे शख्स के साथ। लेकिन ये एक बड़ी बात है इस मुल्क के अंदर के लोग फौरन एक हो जाते हैं और दुख की घड़ी में एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये बड़ी बात है। मेरे ख्याल में इसी को हम होप समझना चाहिए। दूसरी बात ये कि इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होंगी, तमाम रिपोर्टें बनेगी, यस होगा, पब्लिक भी होगा, चीज़ें भी सामने आएंगी। इसमें हमें इंटरेस्ट होता है या नहीं होता है, किसी को सजा देने से आप जो है वो आपका दिल खुश होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर हादसात को रोकने के लिए कोई ठोस इक़दाम होते हैं तो उससे हमें खुशी होगी। हम ये समझेंगे कि जनाब ये बात बड़ी बात है, आपने ठीक है कि जनाब आपने लोगों को आपने गिरफ्त में लाए और असल चीज जो है वो आपने पकड़ ली कि ये वजह थी, ये सबब था कि जिसकी वजह से हादसा पेश आया, और उन असबाब को अगर दूर कर लिया जाता है, हमें किसकी सजा से हमें दिलचस्पी होगी। लेकिन अगर जहाज के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट था और अगर कोई वाकई कोई परिंदा आया जिसने अचानक क्राइसिस पैदा किया और अगर वाकई जो है वो लैंडिंग गियर जो है वो काम नहीं कर रहे थे, अगर वाकई पावर फेल हुआ था, तो फिर अगर ये चीजें आइडेंटिफाई हो जाती हैं जी, तो फिर हमारा ख्याल ये है कि इन चीजों की इस्लाह की तरफ जाएंगे, सारे लोग मिलकर के ठीक है जो चीजें खराब हुई हैं अब उनको ठीक किया जाए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एयर का वो बहुत ही पसमानदा है। ये एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में थी जो तबाह हुई है पिछले 30 साल के अंदर, 30-35 साल के अंदर। इसका बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको एक बर्बादी की तरफ
इंटेंशनली ले जाया गया और इस जगह पर पहुंचाया गया है ताकि इसको औने पौने दामों किसी के हाथ बेच दिया जाए, क्योंकि ऐसा लाइसेंस किसी के पास नहीं है जो पीआईए के पास है। पीआईए के पास आयाटा का जो लाइसेंस है, और जिस तरह इसको रूट से सफर करने की इसको सहूलतें हैं, ऐसे बहुत कम एयरलाइंस को ऐसी सहूलतें हैं। अगर हम इसको बरकरार रख पाते हैं तो दुनिया का बहुत बड़ा ट्रैफिक इंगेज कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन असल मसला ये है कि हमने इसको ठीक तौर पर मैनेज नहीं किया है। सही सही, आप सही कह रहे हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। देखें, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, अब मेरे तीनों मेहमानों ने बर्ड्स का जिक्र किया है, और ये पहली मर्तबा नहीं कि परिंदे टकराते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि एयरपोर्ट्स को आबादियों से फिर शिफ्ट किया गया जैसे जैसे आबादी बढ़ी। क्या हमने कभी इस हवाले से सोचा, और क्या वो वक्त है कि अब हमें ये सोच लेना चाहिए, क्योंकि हर हादसे से कुछ ना कुछ आप सीखते ज़रूर हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। कराची तैयारे हादसे के हवाले से बात कर रहे हैं। अपने इस लास्ट सेगमेंट में दो चीज़ों पे मैं कंसंट्रेट करना चाहूँगी। कॉमोडोर साहब, बिल्कुल सही बात है, कोई जानबूझकर ना हादसा करना चाहता है, ना कोई अपनी इंडस्ट्री को ख़राब जानबूझ करके भाई ये ऐसे हम पुराने गले सड़े जहाज़ लें। लेकिन ये एक आम फहम मैं कहूँगी लोगों के अंदर है कि हमारे जो पीआईए के जहाज़ हैं वो बहुत पुराने हैं, बड़े ख़राब हैं, हम बड़े यूज़ लेते हैं। ये फरमाइएगा, क्या वाकई ऐसा है, आपको लगता है? एंड सेकंड चीज़, इज़ इट टाइम नाउ कि हम अपने एयरपोर्ट्स को शिफ्ट करें, आबादियों से हटाएं? पहली बात, पुराने जहाज़ के मैं अभी सोच रहा था कि 1970s में आई यूज्ड टू फ्लाई मिराजेस। अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन उड़ा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी उड़ा रहे हैं। तो और ये तो मैं मिलिट्री की बात कर रहा हूँ। जो सिविल एविएशन के जहाज़ होते हैं ना, उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट से 10 गुना ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। सही। सो अभी तक बहुत से मुल्क में फोकस अभी तक उड़ा रहे हैं, हालांकि हमने उसको शोर मचा के इसको खत्म कर दिया, अभी तक हो रहा है। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट एन इशू मेंटेनेंस का है। जितने भी पुराने जहाज़ क्यों ना हो, अगर आपकी मेंटेनेंस सही हो, उसका सारा, क्योंकि जहाज़ पुराने भी है, उसके पुर्जे नए लगते रहते हैं, सही सही सारी चीज़ें, तो वो मसला नहीं होना चाहिए। और मेंटेनेंस इशू आप देखते हैं कि हमारे यहाँ है, एग्जिस्ट करती है। अभी देखिए, मैं तो छोड़े हुए मुझे 15 साल 20 साल हो गए, सो आई कांट कमेंट, इट्स पॉसिबल कि कुछ मेंटेनेंस इशू है। एंड नोइंग थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़, वहाँ पे सब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज उन सब में हैं, बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंसेस। कुछ शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करते हैं, मुझे पता है। और जैसे नज़ीर लगारी साहब ने भी कहा कि इस इदारे के अंदर जिस तरह से पॉलिटिकल भर्तियां हुई, इस इदारे के अंदर जिस तरह से तबाही हुई, बहुत सारी चीज़ें, मैं जान के नहीं जाना चाहता, वो सही है। अच्छा, तो अब ये फरमाइएगा कि आपको ये लगता है कि एयरपोर्ट्स को हमें शिफ्ट करना चाहिए? ठीक है, आपने कहा कि एक पर्टिकुलर हाइट तक ही बनाते हैं, जाहिर है पता है कि जहाज़ों में आना है, लेकिन फिर भी आबादियां तो बड़ी, आपने देखा एक पूरी प्लान्ड आबादी यहाँ पर बन चुकी है एयरपोर्ट के करीब। इस मेजर इकोनॉमिक फाइनेंशियल डिसीजन वो फिर गवर्नमेंट को ही लेना पड़ेगा, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि देखें ये बर्ड्स का इशू है। आफ्ताब साहब ने भी कहा कि वो गार्बेज की वजह से भी होता है। मैं ये देखता हूँ कि आप न्यूयॉर्क JFK को देखें, आप लंदन हीथ्रो को देखें, देयर हैज बीन, तो मगर वो मैनेज करते हैं ना, वो बर्ड्स को भी मैनेज कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम सही तो डेवलप करना चाहिए, बट इससे बर्ड्स पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब ये है कि आप इसको अगर जो रिस्पॉन्सिबल है ना 20 किलोमीटर शिफ्ट भी कर दे तो 30 साल बाद वो बढ़ जाएगा। अच्छा, तो अब आप ये समझते हैं आफ्ताब भाई कि यहाँ पर हाँ मेंटेनेंस का बहुत मेजर इशू है हमारे यहाँ है, फाइनेंस का भी है और फिर मेंटेनेंस का है। फाइनेंशियल लॉसेस में तो पीआईए काफ़ी अरसे से 8-10 साल से ये चल रही है, और जब हमारी गवर्नमेंट आई तो काफ़ी लॉसेस में थी। मेंटेनेंस का जो मैंने देखा है, सीट्स की हद तक या इंटीरियर जो है जहाज़ का, उसमें तो मेंटेनेंस के काफ़ी इश्यूज हैं, चाहे वो टॉयलेट हो, सीट्स हो, उनके हम तो यहाँ उसकी मैकेनिकल पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, हाइड्रोलिक पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इंजन्स पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, देखिए ये तो तमाम बोइंग्स जहाज़ों की भी अपनी SOPs होती हैं, उनकी इंस्पेक्शन भी होती है। इस जहाज़ की नवंबर में इंस्पेक्शन हुई है। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, जो अभी हम जहाज़ लीज पे लेते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है वो पेपरा रूल है। तो जब जहाज़ का कोई टेंडर या कोई चीज़ आती है, इंफॉर्मेशन आती है कि और जब हम लेना चाहते हैं, बाय द टाइम जब हम टेंडर करते हैं और टेंडर का रिजल्ट आता है, उस वक्त तक वो जहाज़ निकल चुके होते हैं।
تو یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک ایشو ہے جو ایئر مارشل صاحب سے میری بات ہو رہی تھی کہ ابھی انہوں نے 2-3 جہاز لیے ہیں، بڑی اچھی کنڈیشن کے جہاز لیے ہیں جو لیز پہ ہیں، آپ اس کی سیٹس بھی دیکھیں. اچھا پھر دوسرا یہ کہ پاکستان سے جو انٹرنیشنل فلائٹ چل رہی ہیں، چاہے وہ یورپ، کینیڈا، اب امریکہ کے لیے بھی شروع ہو رہی، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اس میں. 14 گھنٹے کی 15 گھنٹے کی فلائٹس جو ہے بہت مشکل لوگ گزارا کرتے ہیں. بزنس کلاس کی پوری اوور ہالنگ ہمیں اوور چاہیے ہالنگ کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے انٹرٹینمنٹ سسٹم چاہیے، پوری اوور ہالنگ چاہیے، اس کے لیے بڑا پیسہ چاہیے. الحمدللہ بڑی مشکل سے آپریشن لاسز سے بچے ہیں، یا اس میں آپریشن لاسز کے ختم ہوئے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند 1-2 سال میں یہ بہتر ہونی جائے گی. اور ہمیشہ ہر کرائسس سے، ہر حادثے سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور بہتری کی طرف جانا چاہیے کہ اس حادثے کی جو وجوہات ہیں وہ آئندہ جو ہے نا ریپلیکیٹ نہ ہوں. لغاری صاحب ایک چیز جو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، جب آپ سنتے بھی ہیں، آپ نے ایئر بلو کریش کا بھی سنا، اس کے بعد یہ پتہ چلا پائلٹ ایرر تھا. اسی طرح ظاہر ہے نہ پائلٹ خود چاہے گا کہ اس کی جان چلی جائے، اور اس کے اوپر اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کے پیسنجرز ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ایک اسکیپ ہوتا ہے جو ہم کرتے آئے ہیں کہ اٹ واز اے پائلٹ ایرر اینڈ ناٹ ایکچولی پن پوائنٹنگ کہ جہاں جہاں وی ہیو میڈ مسٹیکس، ویدر اٹ از مینٹیننس کے لیے، ویدر اٹ از کہ جہاز کتنے پرانے تھے، کتنا ہم نے ان کے اوپر فوکس کیا کہ اس کو کس طرح سے ہم اور امپروو کر سکتے ہیں. جیسے ایئر کوموڈور صاحب نے کہا کہ جہاز تو پرانے ہوتے ہیں، ہم نئی چیزیں اس کے اندر نئے پرزے لگا رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ دونوں بڑی شخصیات ہیں اور دونوں جو ہیں ٹیکنیکلی اس کے بارے میں اچھا، ان کا نو ہاؤ بڑا اچھا ہے، آفتاب بھائی کا بھی اور جمال صاحب کا بھی. لیکن ایک بات میں جو بتانا چاہتا ہوں، جو میرے براہ راست علم میں ہے کہ جہاز جو بہت سے لینڈ کیے گئے ہیں، جو جہاز کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ مسائل ہیں. مسائل یہ ہے کہ اگر $300 کا پرزہ ہے تو کوئی نہیں خریدے گا، لیکن جہاز کھڑا رہے گا. اگر کوئی $400 کا یا $500 کا $3000 کا بھی ہوگا تب بھی کوئی اس کے پریشانی نہیں آئے گی کسی کو، اس کو ٹھیک کرنے کی دم جائیں گے. ہاں اگر $1,00,000 کا $50,000 کا اگر پرزہ ہے تو پھر ٹینڈر کے لیے جائیں گے تاکہ اس کے ساتھ جو ہے کچھ چیزیں اور ہیں. اس میں بھی میرا خیال ہے کہ کک بیکس ہوتے ہیں، اس میں بھی میرا خیال ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کھائی جاتی ہیں. اس طرح کے کچھ چیزیں میرے علم میں بھی ہیں. میں اس پر اور انویسٹیگیٹ کرنا چاہوں گا کہ میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں کہ ہمارے بہت سے جہاز اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پرزے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں، جن کو خریدنے کے لیے وہ کہتے ہیں یار اگر ان کے 300 کے لیے ہم جا کر $300 کا خریدیں گے تو کیا فائدہ ہے، اس میں تو کچھ نہیں ہمیں بچے گا، جہاز کھڑا چاہیے کھڑا رہنے. تو اس طرح سے سوچا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور ٹیکنیکل پارٹس کو نہیں دیکھا جاتا ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ حادثہ جو ہے، میں پلیر کینٹ کے اندر ہی تھا کہ سامنے یہ حادثہ ہوتے ہوئے میں نے دیکھا. اور دوسری بات یہ کہ جب اسلام آباد میں ہوا تھا حادثہ ایئر بلو کا، تو اس وقت میں اسلام آباد میں ہی تھا اور ہوٹل کی کھڑکی سے میں ساری صورتحال کو دیکھ رہا تھا. میری بدقسمتی ہے کہ میں نے ان 2 حادثات کو اس طرح سے دیکھا ہے. مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، دونوں موقع پر بڑی تکلیف ہوئی ہے. اس وقت بہت بارش تھی اور اس دن ایک دن پہلے بہت ہی شدید بارش ہوتی رہی تھی، اور اس کے بعد جب جہاز کی لینڈنگ کا وقت آیا تھا تو جہاز جو ہے وہ آگے پہاڑ کی طرف مارگلا کی طرف چلا گیا اور مارگلا سے جا کر ٹکرا لیا. تو وہ جو پائلٹ تھا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ مطمئن نہیں تھا، وہ اپنے طور پر وہ زیادہ اپنا کر چکا تھا، وہ تھک چکا تھا، تو وہ نہیں چاہتا تھا. ایئر بلو کی بات کر رہے ہیں. جی لغاری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. جی لغاری صاحب، اس سے پہلے بھوجا ایئر لائن کا واقعہ ہوا تھا تو وہ اس میں بھی یہ بات موجود تھی کہ نہیں دیکھا گیا تھا کہ اس پائلٹ نے کتنا جہاز کو چلایا ہوا ہے اور کتنا اس نے ریسٹ لیا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھا گیا تھا. ہمیں نہیں پتا کہ یہ جب آ رہے تھے تو مسقط سے اگر یہاں آ رہے تھے تو یہی چلا کر آ رہے تھے یا کوئی اور آئے تھے اگر وہاں سے آ رہے تھے تو کیا صورتحال تھی ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ پائلٹ یہی تھے. لیکن اس میں تو ٹیکنیکل ایرر جو ہے وہ صاف ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ آخری میں جو گفتگو ہے وہ شاید اور چینل پہ بھی دکھایا ہوگی، ہم نے بھی اپنے چینل پر دکھائی تھی کہ وہ جو ہے اس کی گفتگو سنائی جا رہی ہے جو وہ ایئر کنٹرول ٹاور سے بات کر رہا ہے، تو اس میں لگ رہا ہے کہ ایرر آ گیا ہے اور پرابلم پیدا ہو گئی ہے. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکل فالٹ اگر کوئی ایک کمیٹی بنائی جائے، آفتاب صاحب کی
बराई में एक कमेटी बना ली जाए कि जी आप ये देखें कि इन जो जहाज खड़े हुए हैं, जो लैंड किए गए जिन जहाजों को, उनके अंदर टेक्निकल फॉल्ट्स क्या हैं, जो ग्राउंडेड हैं। सही। अगर वो टेक्निकल फॉल्ट रिमूव करके उनको ट्रैफिक में लाया जा सकता है तो जहाजों की उम्र बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, बहुत चलते हैं। और ये बात जो आपने कही में कि उनके कितने आवर्स थे उस पायलट के, उस हवाले से आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? शाम से ये खबरें आ रही थी कि ही वाज ओवरवर्क्ड आल्सो। ये नहीं पता, मैंने कहा ना जो हतमी रिपोर्ट सामने आएगी तो उसी में सब पता चलेगा। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं देखें चाहे वो केबिन क्रू हो या कॉकपिट क्रू हो, इनके वर्किंग आवर्स होते हैं, बिल्कुल सही है। ज्यादा ये फ्लाई नहीं करते, ये लोग भी नहीं करते, पापा का भी अपना बड़े सही है। तो ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, दूसरा जो पीआईए की खराबी में जो सबसे बड़ा हाथ है ना, वो यूनियन का है। यूनियंस जो है ना बहुत स्ट्रांग है। अब आप देखें पर प्लेन जो है, वो जो एम्प्लॉइज़ है उनका जो रेशियो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। यूनियन एक जहाज पे जो एक एम्प्लॉइज़ का रेशियो होता है वो सबसे ज़्यादा है दुनिया में, और यूनियंस की यहाँ डिक्टेशन बहुत है। इसको भी देखना पड़ेगा आगे। आप करना चाह रहे हैं बिफोर आई गो टू माय रिपोर्टर? बेसिकली जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन वर्ल्ड वाइड के जो स्टैटिस्टिक्स है, 80% 85% जो एरर्स होते हैं वो पायलट फैक्टर, ओके, ये है। बिकॉज पायलट वो आखिरी चेन होता है। सही बात है। लेकिन उसके कैजुअल फैक्टर, कॉजल फैक्टर है ना, वो नहीं देखा जाता है। जैसे आपने कहा था कि वॉज इट ट्रेन प्रॉपर्ली, उसकी स्लीप सही हुई थी, उस पर प्रेशर तो नहीं था जो अपेरेंटली भोजाई लाइन पे था कि वो डाइवर्ट करेंगे तो फिर खर्चा ज़्यादा हो। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें इंक्वायरी में आती है। और दूसरी बात, इंक्वायरी में हमें एक चीज़ जो हमें बहुत सख्ती से पढ़ाया जाते हैं कि आपने इंक्वायरी करनी है टू प्रिवेंट फर्दर एक्सीडेंट, नॉट टू जस्ट ब्लेम एनीबॉडी। ओके, ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तलत की तरफ चलते हैं। हमारे रिपोर्टर जाय वकू पर मौजूद है, जरा पूछते हैं कि इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त कहाँ तक पहुँची हैं। जाहिर है अब रात का वक्त भी हो चुका है। जी तलत, फरमाइएगा कहाँ तक पहुँची हैं इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर? जी बिल्कुल, इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। जैसे ही ये हादसा, एक अलमनाक हादसा पेश आया था, उसके फौरी तौर पर जो रेस्क्यू अदारे थे वो यहाँ पहुँचे थे, जिनमें आर्मी के लोग थे, रेंजर्स के थे, पुलिस के थे, दीगर रेस्क्यू टीमें थीं, वो यहाँ पहुँची। सिविल एविएशन की टीम थी जो थी वो यहाँ पहुँची थी। तो बड़ी तेज़ी से ये काम हो रहा था, लेकिन जगह बड़ी तंग है जहाँ पर ये जहाज़ जिस गली के अंदर गिरा था। लेकिन अफ्तारी के टाइम पर ये रोक दिया गया था इसको, रेस्क्यू ऑपरेशन को। अब दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो दोबारा शुरू किया गया। अब तक कई लाशें जो है वो निकाल ली गई, जिनको जिनाह हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और अभी भी इस वक्त भी जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है। यहाँ हमारे सिक्योरिटी इदारों के नौजवान जो हैं वो खड़े हैं, लेकिन हमें वहाँ तक अभी तक रसाई नहीं दी जा रही। अच्छा। कि मीडिया को वहाँ तक रसाई दी जाए। इनका कहना ये है कि जब तक रेस्क्यू मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक कोई रसाई नहीं होगी, और आपको तमाम मालूमात जो है वो रेस्क्यू मुकम्मल होने के बाद ही दी जाएगी। जहां मैं ये भी बताना मुनासिब समझूंगा कि जहां ये बदकिस्मत जहाज जिस जगह पर गिरा था उससे 8 या 9 मकान जो है वो शदीद मुतासर हुए, जिसमें 27 के करीब लोग जो थे इन मकानों में जो रहायश पजीर थे उसमें वो भी जख्मी हुए थे, जिनमें 7 ऐसे थे जो मामूली थे जिनको फारिग कर दिया गया था। 13 के करीब ऐसे हैं जिनको ब्रंस वार्ड जो है सिविल की वहां रखा गया है। बाकी दीगर हॉस्पिटलों में इस वक्त एडमिट है। तो इस वक्त रेस्क्यू का काम जो है वो बड़ी तेजी से तलत ये बताइएगा कि क्या इस मलबे तले लोगों के दबने की कोई इत्तलात हो, लोग ढूंढ रहे हों, या सारे के सारे अल्लाह का शुक्र है कि निकाल लिए गए हैं वहां से? नहीं, अभी तक जो लाशें हैं उसके निकालने का सिलसिला जारी। अभी तक तमाम जो है वो निकाली नहीं जा चुकी। अच्छा। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जगह तंग है, गली तंग है जहाँ ये मलबा गिरा है। फिर उसके बाद आग बुझाने के वक्त यहाँ पानी जिस तरह से डाला गया, अब उसको आस्ता आस्ता चीजें जो वो हटाई जा रही है और उसके नीचे से जो दबे लोग हैं उनको निकाला जा रहा है। आग मुकम्मल तौर पर उस पर काबू पा लिया गया है अब? जी बिल्कुल, आग जो है उस पर तो मुकम्मल तौर पर काबू जो है वो पा लिया गया है। लेकिन अब सामान, पहले जहाज का जो मलबा है उसको भी हटाया जा रहा है। दीगर जो मकानों को जिस तरह से नुकसान पहुंचा उनका जो मलबा गिरा है उसको भी हटाया जा रहा है। तो आस्ता आस्ता ये काम जो है वो जारी है। लेकिन तंग गली है, रोशनी नहीं है, तो उस वजह से रेस्क्यू इदारे जो वो लगे हुए हैं, और रेस्क्यू इदारों का कहना यह है कि बहुत जल्द इस काम को मुकम्मल कर लेंगे। रावलपिंडी से भी रेस्क्यू की एक टीम कराची रवाना कर दी गई थी। इफ्तार से पहले ये सारी खबरें आ रही थी, यकीनन वो भी पहुंच गई होगी। थैंक यू तलत, आपका बेहद शुक्रिया। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, नज़ीर लगारी साहब, एयर कॉमोडोर जमाल हुसैन साहब, आपका बेहद शुक्रिया। दुआ गो हैं हम सब कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जो इस हादसे में शहीद हुए,
اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جلد سے جلد ہم اس حادثے کی وجوہات جان سکیں. اور جیسے جمال صاحب نے کہا کہ کسی بھی انکوائری کا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ بلیم جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے، بلکہ ایسے حادثوں کو ہونے سے روکا جائے. یہ ہماری سب سے امپورٹنٹ میرے خیال سے فوکس بھی ہونا چاہیے، اور اللہ کرے کہ ان حادثوں میں کمی آئے اور ایسا کوئی حادثہ اب کبھی نہ ہو. بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.